Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing your science work regularly. Yesterday we discussed about chapter 2nd and today we will start a new chapter, that is chapter 3rd, metals and non-metals. I hope that you have seen a lot of materials around you, and these materials are made up of same kind of particles. These are known as pure substances. Pure substances are those which are made up of same kind of particles. For example, iron is made up of iron particles, copper is made up of copper particles. So these are known as pure substances because they are made up of same kind of element, and different element differ from each other in their physical and chemical properties as they are made up of atoms of different kind. For example, physical properties of iron will be different and physical property of copper will different. That means different element having different physical and chemical properties, and they are made up of same kind of atoms but differ in different kind. For example, iron is made up of iron atoms and copper is made up of copper atoms. बेटा जितने भी मटेरियल्स आप देखते हो वो इफ़ दे आर प्योर, अगर वो प्योर हैं तो सेम तरह के एलिमेंट एटम से बने होंगे वो. जैसे कॉपर है, कॉपर एटम से बना होगा, आयरन आयरन एटम से, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर होगी. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल मीन्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट्स अपीयरेंस, whether it is shining or dull, and chemical means whether they react with water, oxygen, hydrogen. This shows their chemical properties. तो आपको फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? फिजिकल में हम क्या बताते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. कोई भी एलिमेंट है वो कितने पॉइंट पर मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉयल कितने पर हो रहा है वो. एंड केमिकल मीन्स रिएक्शन करना विद वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस शोज केमिकल प्रॉपर्टीज. In this chapter we will study about metals and non-metals and their physical properties as well as chemical properties. Next is the classification of elements. As you know that there are 118 elements known at present, and it is difficult to study all the properties of element separately. मतलब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी को रीड कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसलिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी, एंड दिस ग्रुपिंग इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मतलब एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया. फॉर एग्जांपल आप पीरियोडिक टेबल की जो बात करते हो, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो आती है दैट इज़ मेटल्स, जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं. उसके बाद नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करा. एंड वो किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए. जिनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं उन एलिमेंट्स को हम सेम ग्रुप में रखेंगे और बाकी एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में. दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स टू कीप ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना, उनको डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करना, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. So elements are basically categorized in 2 groups like metals and non-metals, and their physical and chemical properties are also differ. Next topic is occurrence of elements. That means how elements occur in nature. Metal exist in abundance in earth crust. Aluminium is the most abundant metal. It is followed by iron. Aluminium is most abundant. Abundant means it is present in large amount. And next is given to you highly reactive metals like sodium, potassium, aluminium and zinc are found in nature in the form of their compounds. Compound means these metals like sodium, potassium, aluminium, they are not in free state. That means oxide, sulfide and carbonates are also combined with them. For example, sodium is present in sodium oxide form. अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है बेटा? नेम हाईली रिएक्टिव मेटल्स. हाईली रिएक्टिव मीन्स जो इजीली रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी
सब्सटेंस के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दीज आर फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड मीन्स ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सोडियम जो है उसमें सोडियम के एलिमेंट के साथ में, सोडियम के एटम्स के साथ में ऑक्सीजन भी आपको कंबाइन मिलेगा। सो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड। अगर सल्फर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म सल्फाइड, एंड अगर कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे देन इट इज़ नोन एज कार्बोनेट। कंपाउंड्स क्लियर हुए बेटा आपको, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ऑक्साइड मीन्स अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट होगा तो सल्फाइड, एंड कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बोनेट। Less reactive metals like gold, silver and platinum occur in nature in their elemental or native state. Now question arises, give example of less reactive metals or metals that react least in nature. Least means जो easily react नहीं करते. So answer will be gold, silver and platinum. जितनी भी हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं बेटा, ज्वेलरी गोल्ड की, सिल्वर की या प्लैटिनम की बनी होती है। वाई? बिकॉज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में आके वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट इज मैनी नोन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमोसफियर। Oxygen and nitrogen are two well-known example of known metals. नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, गिव एग्जाम्पल ऑफ नोन मेटल्स। तो आप क्या बताओगे, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर नोन मेटल्स एंड दीज नोन मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मीन्स इनके साथ में ऑक्सीजन, सल्फर या कार्बन के कंपाउंड जो है वो कंबाइन नहीं होते। जैसे हमने पीछे बताया ना, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम के साथ में ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में ये कंपाउंड नहीं है, मतलब ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कंपाउंड्स अटैच भी होंगे तो लाइक ऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कंबाइन होंगे। Sulfur exists in the free state as well as in the combined state. Carbon exists in its native state as diamond, graphite and fullerene. It also exists in the form of its compound like carbon dioxide, carbonate and bicarbonates. ये आपको कार्बन की स्टेट दे रखी है, कार्बन जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, 3 स्टेट आपको गिवन है जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेटिव स्टेट ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कंपाउंड फॉर्म लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बनाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। और बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स मीन्स 2 कार्बन्स अटैच होंगे। दिस इज अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किस तरह से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स एग्जिस्ट इन द कंपाउंड स्टेट बट सम नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट as well as in the form of their compound. Next is mineral and ores. A mineral is naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of earth. Mineral is inorganic substance and mineral is found deep under the surface of earth. Earth surface में जो हमें present मिलते हैं materials उनको क्या बोलते हैं, minerals. And ore is a mineral from which one or more metal can be extracted profitably. ore क्या है, ore is also a mineral and ore से हम क्या करते हैं, मेटल को obtain करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर्स एंड आयरन फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर. तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें ओर्स के आपको एग्जांपल देने हैं. एल्यूमिनियम जो ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉक्साइट बोलते हैं उसको. एंड आयरन
ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट। बेटा जो मिनरल्स अर्थ सरफेस में प्रेजेंट हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और मिनरल के अंदर एक या एक से ज़्यादा मेटल्स प्रेजेंट हैं और उन मेटल्स को सेपरेट करना दैट इज़ नोन एज ओर। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट ओर है तो बॉक्साइट ओर में आपको कौन सा मेटल मिलेगा? एल्यूमिनियम। ऐसे ही हेमेटाइट ओर जो है, हेमेटाइट ओर से आपको क्या मिलता है? आयरन। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। As I told you that it is a mineral which contains metals, one or more metal, that means metal are not in free state, and to extract metal from its ore is known as metallurgy. metals को ore से separate करना, for example bauxite एक ore है और आपको इस bauxite ore से कौन सा metal obtained हो रहा है? एल्यूमिनियम। तो इस तरह से एल्यूमिनियम मेटल को बॉक्साइट ओर से सेपरेट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। सो डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी इज क्लियर टू यू। इट मीन्स द प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट मीन्स मेटल को सेपरेट करना। कहाँ से सेपरेट करना? फ्रॉम इट्स ओर। ओर मीन्स मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसके साथ में कुछ और इम्प्योरिटीज़ अटैच होंगी, लाइक ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होगी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप एंड दीज steps are very important. 3 steps are given to you. First step is concentration of ore, second is reduction and third is refining of metal. So question arises, state the 3 steps used to extract of a metal. Again I am telling you question that state the 3 step टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम 3 स्टेप बताते हैं वो स्टेप्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। ओर्स में बेटा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, मेटल्स प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। जब आप मेटल से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करोगे देन दिस इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। फर्स्ट स्टेप में हमने इम्प्योरिटी रिमूव की, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? मेटल्स विल कम इन फ्री स्टेट। फ्री मीन्स फॉर एग्जांपल आयरन जो है उसमें आयरन के पार्टिकल्स ही होंगे, कोई और ऑक्सीजन या फिर ऑक्साइड या कार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। दिस इज़ नोन एज रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स मेटल obtained by reduction is generally impure. Refining is the process of purification of this impure metal. रिडक्शन में आपने क्या किया? मेटल को फ्री स्टेट में obtained किया but this metal still containing a lot of impurity and in last step we will purify matter and this step is known as refining of metal. क्लियर हुआ? रिडक्शन से जो हमें मेटल ऑब्टेन्ड हुआ दैट इज़ जनरली इम्प्योर, वो मेटल प्योर नहीं होगा एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? उस मेटल को प्योर करेंगे एंड दिस स्टेप इज़ नोन एज रिफाइनिंग। आई होप दैट ऑल दीज 3 steps आर क्लियर टू यू। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इफ़ यू लर्न दीज हेडिंग दैट इट इज़ सफिशियंट। जब आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का 3 स्टेप्स का तो आपको जस्ट हेडिंग बतानी है, इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हेडिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज लेट अस नाउ स्टडी एंड कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वी विल कंपेयर द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। First is physical state. All metals except mercury, except means this is exceptional case, are solid at room temperature. बेटा जितने भी metals हैं all these metals exist in solid state. As you know that there are 3 states of matter: solid, liquid and gases. Generally metals exist in solid state
except one metal that exists in liquid state, and that metal is mercury. This is your question, important for exam point of view. Name the metal which exists in liquid state. So your answer will be mercury. Mercury is a metal that exists in liquid state at a room temperature. Otherwise, a lot of metals, generally almost all the metals exist in a solid state. बेटा जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में. दैट्स वाई इन थर्मोमीटर वी यूज़ मरकरी. आपने देखा होगा सिल्वर कलर का कुछ मटेरियल यूज़ किया जाता है मरकरी के अंदर, एंड दैट सिल्वर color material is mercury. Mercury, why we use mercury in thermometer? Because mercury exists in a liquid state and it cannot stick with the glass. ग्लास के साथ स्टिक भी नहीं करता, और जो मरकरी है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सो एग्जाम्पल ऑफ अदर मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. दीज आर some example of metals, and these all metals exist in a solid state. इसी में आपको गिवन है नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. नॉन मेटल्स जो है बेटा वो रूम टेम्परेचर में तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट. फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन. दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स. इट इज़ क्लियर टू यू? Metals generally exist in solid state, but non-metals exist in solid, liquid as well as gaseous state. तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, these exist in solid state. Bromine exists as a liquid, while chlorine, oxygen and nitrogen are example of non-metals which exist in the gaseous state. ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? गैसियस स्टेट में. क्लियर हुआ? नॉन मेटल्स हम बता रहे हैं कि तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए नेम सम नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, देन योर आंसर विल बी कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन. एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सो योर आंसर विल बी ब्रोमीन. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. आंसर विल बी क्लोरीन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन chlorine, oxygen and nitrogen. These are known metals that exist in a gaseous state. So next is melting point and boiling point. Metals generally have high melting and high boiling point. Melting means the temperature at which given substance melt, and boiling point is the temperature at which given substance boil. For example, boiling point of water is 100 degree Celsius and melting point of water is freezing point of water is 0 degree Celsius. तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सभी मटेरियल्स का, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का डिफरेंट होगा. मेल्ट मीन्स द टेम्परेचर एट विच गिवन सब्सटेंस मेल्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1536 degree Celsius and its boiling point is 3000 degrees Celsius. Some metals however have exceptionally low melting point. For example, cesium. Cesium metal have low melting point that is 28.7. हम कह रहे हैं बेटा कि मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे 1500 हुआ, 3000 है, तो ये बहुत ज़्यादा दे रखा है आपको. बट एक एक्सेप्शनल केस गिवन है. What is the meaning of exceptional? Exceptional means which shows different property from its group. मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहे हैं. एक्सेप्शनल मीन्स कुछ अलग जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज सीजियम. सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 28.7 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स का बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है बेटा. फॉर एग्जाम्पल, सल्फर का कितना होगा? 119 डिग्री. देर आर एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ वेरी हाई, 3723. नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है, बट आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस गिवन है. ओनली वन एक्सेप्शन इज गिवन टू यू, दैट इज़ डायमंड. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन की एक टाइप है.
एज यू नो दैट कार्बन इज़ नॉन मेटल, स्टिल इट हैव हाई टेम्परेचर। जनरली हम बता रहे हैं कि नॉन मेटल्स का टेम्परेचर कम होता है, बट डायमंड का टेम्परेचर जो है वो, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट वो हाई है, कितना 3723 डिग्री सेल्सियस। सो टुडे योर वर्क इज़ बेटा, यू हैव टू रीड these pages, page number 37, 38 and 39, and write and learn extra question. For example, definition of pure substance, and then highly reactive metal, least reactive metals, example of metals and non-metals, physical property. Physical property means example of metals that exist in liquid state, and non-metals, example of non-metals that exist in a solid state, liquid state and a gaseous state. Next is melting and boiling point. So today work is you have to write and learn these extra question.